नमस्कार। आज है 8 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं रेड फोर्ट, जहाँ पे इंडियन आर्ट, आर्किटेक्ट और डिज़ाइन बिनालय चल रहा है। तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहे और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि फ़ाइन आर्ट्स व अन्य लोगों को बहुत काम आ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखें, अपने मित्रों से शेयर भी करें। मिलते हैं फिर। तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ से है और ये इधर का है, ये ऐसा है। वाह, तो आप हैं अभी लाल किले पे और जो यहाँ डिज़ाइन आर्किटेक्चरल बिनालय चल रहा है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 9 से 15 तारीख तक आप लोग आ सकते हैं। और ये यहाँ से फाइंड योर वे जाके, और ये हमारी क्यूरेटर खड़ी हैं। लास्ट मोमेंट काम फिनिश हो रहा है सब यहाँ पे। तो ये है आर्ट बाज़ार। यहाँ सभी क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कैलीग्राफी फाउंडेशन, आई थिंक वो इंकू सर का है। रूफटॉप, डी शोज़। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इस जगह का, leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and in furtherance of his vision of Virasat par Garv, the government has made strides in the preservation and promotion of India's heritage, art. आने वाले हैं सामने, जस्ट हम वेट कर रहे हैं। आ जाए।
Arjun Ram Meghwal, the Honourable Minister of State for Culture and External Affairs, Ms. Meenakshi Lekhi, and of course our special guest who is already up on the dais, Diana Kellogg. Srimati Meenakshi Lekhi ji, and with her the Honourable Minister of Law and Justice and the Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome with a thunderous applause the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. We warmly welcome the Honourable Prime Minister to the India Art, Architecture and Design Biennale 2023. May I now request you to please introduce the concept of the India Art, Architecture and Design Biennale, and also to welcome the Honourable Prime Minister, guests, exhibitors, participants and friends. We then have this man, creative crossover, architectural icons of independent India, the captivating visual odyssey of Indian painting and motif, in the manifold tradition, and lastly, Samvasta, an initiative to facilitate and celebrate women and their contribution to Indian architecture. 7 books designed as compendiums that accompany each theme of our Biennale. Thank you, Prime Minister. As you have already noticed by now, the scale and expanse of the Biennale is mammoth and needs one to spend a lot of time visiting each panoramic exhibition and installation. We have tried to capture the themes of the different exhibitions in a short film, and I request the Honourable Prime Minister to use the remote and symbolically launch the India Art, Architecture and Design Biennale 2023. For centuries, India has been a source of creative inspiration for the world. Today, it stands at the precipice of reshaping its role in the global realm of art and culture. Since 2014, under the visionary leadership of Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi and in furtherance of his vision of Virasat par Ghar, the government has made strides in the preservation and promotion of India's heritage, art and culture. शुरुआत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी की धरोहर से की जा रही है। इन इमारतों में नई गैलरी, नई एग्जीबिशन, साथ थिएटर, ड्रामा और म्यूजिक कंसर्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। A Biennale that is a large-scale global-level art and cultural exhibition is now happening in India. Since the first Biennale was held in Venice in 1895, there have been over 280 such festivals. The Prime Minister's vision of Virasat Par Ghar
serves as an inspiration to establish a global alliance for art, and thus the government of India is proud to present the world's youngest Biennale in India Art, Architecture and Design Biennale. With a series of artworks and installations spanning 1 lakh square feet of access programming space, the Biennale covers over 250 acres of the Red Fort complex. In addition to being on display for 115 consecutive days, the Biennale has 7 themes, each of which has a dedicated pavilion comprising a total of 78,000 square feet of space for display. Survey explore the diversity of India's doors and gateways. Bhagwan Bahar unfolds a carpet of nature's splendor, from mythology to ecology. Sampradaya travels through the awe-inspiring stepwells of India. Sthapatya, magnificent structures that serve as the earliest markers for our enduring prosperity. Vismaya, creative crossovers, architectural wonders of independent India. Research, pay a tribute to our roots and sustainability. Samatra is a tribute to the country's women architects. In celebration of the birth centenary of Purnima Devi Chaudhary, one of India's first known qualified women architects. With exhibitions, public art installations, workshops, international banners, publications and much more, the Biennale is a story of India's genius in the field of art, architecture and design. हेलो एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट आइमन मुजरातो। रहने वाला लगभग जगह ये पहले जो देख रहे हैं वो हमारी बरसा पे बने आए व्यक्ति का है। इंग्लिश में जब कल्चर के थ्रू से हम यहाँ आए हैं। मैं प्रधान दोनों करके चित्र बनाती हूँ, कहानी में मैं चित्र बनाना डॉक्यूमेंट्री करने की मिस दयाना गहलोत जी, जहाँ देश के लगभग 100 से ज्यादा कारीगर 17 भारतीय शिल्पों की डिजाइन की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बेहद गर्व की बात है कि लाल किला आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन बिएनाले जैसे कला उत्सवों और सांस्कृतिक साझेदारी के कार्यक्रमों के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नई पहचान बना हुआ। केंद्र की खासियत है यह आर्ट के दर्शन को प्रोत्साहित करता है। बहुत सुंदर। कारीगरों के लिए शुरू की गई योजनाएं इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कलाकारों और शिल्पियों के लिए कितने संवेदनशील हैं। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। कलाकारों और शिल्पियों के लिए शुरू की गई बड़ी योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना। इस योजना में 140 से ज्यादा को शामिल किया है। 25 लाख लोग इसके लिए आवेदन किया। इसी तरह अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत दस्तकार सशक्तिकरण योजना, हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर मिशन, विपणन सहायता एवं सेवा योजना, अनुसंधान एवं विकास योजना आदि कई कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ABCD के जरिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त उत्पादों को चिन्हित किया जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इस केंद्र में देश के भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उत्पादों को तैयार करने के लिए डिजाइन बिएनाले द्वारा कुछ दीर्घाएं तैयार की गई हैं, जहाँ भारत के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग
विशिष्टता वाले पारंपरिक शिल्प पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के ध्येय के साथ साथ वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की भावना को बढ़ावा देना। इस प्रधानमंत्री किया जा रहा है। We have with us this afternoon Ms. Diana Keller. मीनाक्षी लेखी जी, डायना केलर, ये सेंटर लोकल आर्ट को एनरिच करने के लिए बनाए गए पैवेलियन देख रहा था। गणमान्य साथियों, देवी और पूज्य, लाल किले का ये प्रांगण अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये किला केवल इमारत नहीं, यह एक इतिहास है। आजादी के पहले और आजादी के बाद कितनी ही पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लाल किला अड़ीज है, अमीर है। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किले में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, हर राष्ट्र के पास उसके अपने प्रतीक होते हैं जो विश्व को उसके अतीत से और उसके मूल्यों से परिचित करवाता है। और इन प्रतीकों को गढ़ने का काम राष्ट्र की कला, संस्कृति और वास्तु का होता है। राजधानी दिल्ली के ऐसे ही कितने प्रतीकों का केंद्र है जिनमें हमें भारतीय वास्तु की भव्यता के दर्शन होते हैं। इसलिए रांची के किले पर एक कार्यक्रम था, तो मैंने वहां सरकार से बात की कि हमने बुंदेलखंड को स्पोर्ट टूरिज्म के लिए डेवलप किया। और बाद में उन्होंने सारा रिसर्च किया, उसका जो ग्रंथ तैयार हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। अकेले बुंदेलखंड में इतना रिच हेरिटेज सिर्फ फोर्ट का, तो झांसी का नहीं, अनेक जगह और खासतौर पर एक जगह, यानी इतना समृद्धमान है। तो चाहूंगा कभी हमारे जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं तो वहां जाकर के उसको आर्ट वर्क करने का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन रखा जाता है। तभी जाकर के दुनिया को पता चलेगा हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ निर्माण किया। क्या आपने सोचा कि भारत की डायवर्सिटी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी रूप में भारत का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया। साथियों, भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला है। अर्थात हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं, हम स्वयं की जगह स्वयं के आस्था रखने वाले लोग।
हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े। हमने योग जैसी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया, जिसका लाभ पूरी दुनिया को हो रहा है। हमने आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर मजबूत बनाने के प्रयास शुरू किए, तो इसकी अहमियत पूरी दुनिया समझ रही है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रखा, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए नए विकल्प संकल्प रखा। आज मिशन लाइफ जैसे अभियानों के जरिए पूरे विश्व को बेहतर भविष्य की उम्मीद मिल रही है। आज आर्किटेक्चर और डिजाइन के क्षेत्र में भी भारत जितनी मजबूती से उभरेगा, उसका उतना ही लाभ पूरी मानवता को होने वाला है। साथियों, सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती है। इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आयोजन का आगे और भी विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है कि आयोजन इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित होगा। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देशवासियों से मेरा मार्च महीने तक ये आपके लिए उपलब्ध है। पूरा दिन निकालिए, एक एक चीज को देखिए, हमारे यहाँ कैसी प्रतिभाएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, प्रकृति के प्रति हमारा कितना लगाव है, इन सारी बातों को एक जगह पर महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। For your invaluable insights, guidance and vision. Your vision of developing a cultural spaces project at the Red Fort is now real and happening. देवी और सज्जन, लाल किले का ये प्रांगण अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये किला केवल इमारत नहीं है, यह एक इतिहास है। आजादी के पहले और आजादी के बाद कितनी ही पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लाल किला अड़ी है, अमीट है। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किले में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोगों ने अभी प्राइम मिनिस्टर के भाषण सुने, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को भी ये जरूर सुनने को मिलेगा, होगा लाइव, फिर मुलाकात होती है।
दोस्तों अभी हम हैं यहाँ दिल्ली रेड फोर्ट में, जो बिनाले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित किया गया है उसके ओपनिंग में। ओपनिंग मोदी जी द्वारा ये किया गया और यहाँ पीछे आप लोगों को एग्जीबिशन दिख रहा है। ऐसे 7 वेन्यू अलग अलग हैं, हमारे काम यहाँ लगे हैं। तो आप लोग आइए, 7 से 9 से 15 तारीख तक आप लोगों को रेड फोर्ट में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोग ज़रूर आएँ, आप सभी का स्वागत है। जो काम है वो हैंग हुआ है, तो आप सभी आए और इस बिनालय को ज़रूर देखें। ये जो आप देख रहे हैं ये काली यंत्र है और आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं, आरती जी, और उनका ये इंस्टॉलेशन है। दूसरा वर्क यहाँ उनका है। इंस्टॉलेशन को थोड़ा ध्यान से देख लो। और ये इंस्टॉलेशन बहुत ही अलग सा है। ये शायद बचपन में ये शीशियाँ बहुत आप लोगों ने देखी होंगी, पर ये अभी वैक्सीनेशन बॉटल्स हैं जिनने करोड़ों लोगों की जान बचाई है पूरे विश्व में। और ये जो इसका जो रूप है वो एक काली यंत्र का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आरती जी। एरिया को मैंने देखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। रेड फोर्ट में, और ये हमारा काम यहाँ डिस्प्ले है और ऑजस नाम से जो वेन्यू है हम यहाँ पे है, और काफ़ी सारा यहाँ पे काम है, आर्ट वर्क्स हैंग किए हुए हैं। मोदी जी ने इसका ओपन किया है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, मोदी जी को, मीनाक्षी लेखी जी को, इवन मुग्धा जी को, अबीरा, सभी को हम थैंक यू करते हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है लाल किला, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और
इसका एक अलौकिक नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है।